Hi everyone, good evening. I hope I'm audible to everyone. So what we are going to learn today, we'll start with a chapter called current electricity. And our goal is to basically understand how current exactly behaves in case of conductors, current flowing, charge flowing through conductor. And we'll try to utilize different approaches on how to solve equation and how to create equation and why to write equation. And we'll try to understand also a lot of questions or approach where design symmetry is very important. So you look at design, you'll try to figure out what kind of symmetry it has, and that will somehow try to reduce our problem. And obviously this is a very important chapter, we already know. So let's begin with a concept of current. It's a very simple concept. We have already kind of studied it. So start karte hain. Let me share the screen again. Yeah, okay. So we are good to go now. So like we have studied electrostatics. So electrostatics means आपका charge was in motion, sorry, at rest. And that is why the name is there, like electrostatics. Statics means basically at rest. यहाँ पर क्या है, basically we are going to study charge in motion. So that is what current electricity is all about. So many things we have studied in electrostatics will not be valid here, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि जो भी, क्योंकि आपने electrostatics बहुत recent chapter पढ़ा है, and you will tend to apply each and everything you have studied in electrostatics. ठीक है? So that is not the case. So in many cases things will differ, and there will be few specific cases. So you should think accordingly. है ना? आपको as it is, electrostatics का जो concept है वो as it is यहाँ पर नहीं लगा देना. ठीक है? So we are basically going to study charges in motion. Okay, so in short we can say we are going to study charges in motion. ठीक है? तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप मूव कर रहा है, या फिर आयंस का एक ग्रुप मूव कर रहा है, या फिर प्रोटॉन्स का एक ग्रुप मूव कर रहा है. इट कैन बी एनीथिंग, बस चार्ज होना चाहिए. एंड इफ इट्स मूविंग थ्रू कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर पास हो रहा है, किसी और के थ्रू मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास हो रहा है, राइट? सो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली चार्ज इन मोशन. ठीक है? सो कितना चार्ज आपका पर सेकेंड, कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है थ्रू वॉट एवर पाथ दैट इज पॉसिबल, दैट इज फीजिबल, उसको हम लोग करंट बोल रहे हैं. तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल डेफिनेशन है करंट का, दैट इज दिस इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. सो लाइक वी कैन सिंपली राइट करंट इक्वल्स टू डी क्यू over dt. You can write small q, you can write capital Q, that is not an issue. ठीक है? So this is the most and fundamental formula that we are going to use, or concept we are going to use in current electricity in solving lot of problems, not just here. मतलब ये चीज आपको कैपेसिटर में भी यूज करना पड़ेगा. That's why I've written it as dq over dt. कैपेसिटेंस में भी आप यूज करेंगे इसको. आगे LC ऑसिलेशन, LR सर्किट वगैरह पढ़ेंगे, AC करंट पढ़ेंगे, that is also very important. और उसका जो काफी फंडामेंटल्स है वो इस छोटे से एक्सप्रेशन पे रिलाई करता है. So keep that in mind. So let's write the formality part. So we'll simply call it rate of flow of charge per unit time. But through what? That is question है ना, किस चीज के थ्रू? So मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह से मान लीजिए एक वायर बना है, ये पूरा वायर है. ठीक है? मैंने एक मोटा सा वायर बनाया so that I can write anything inside it, right? So आपके चार्जेस मूव करें, जैसे पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरह से मूव करे, तो आप क्या करो, एक क्रॉस सेक्शन ले लो इस तरह से, डॉटेड लाइन, मतलब क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने. एंड क्रॉस सेक्शन पे बैठ के आपको ये काउंट करना है कि कितने चार्जेस, कितना चार्ज, मतलब नॉट नंबर ऑफ चार्जेस, चार्ज अमाउंट, कितना चार्ज अमाउंट जो है पर सेकंड आपका लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रहा है सर. ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू figure out. So we cannot simply write rate of flow of charge, that won't make sense. We need to write per unit time through a given cross section, through a given cross section. Or you can say cross sectional area, that will be a bit better. तो यूनिट क्या है करंट का, तो आप यूनिट बहुत इजीली लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल
current is dq by dt. Dq is what? Basically charge, right? And dt is what? Basically time. So charge divided by time. तो charge का unit था आपका कूलम था, and time का unit second है ना, स्टैंडर्ड यूनिट. तो कूलम पर सेकंड भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर you can also write एम्पियर. ठीक है, सो ये आई गेस साइंटिस्ट का नाम है ये एम्पियर. एंड अगर आप कंप्लीट वर्ड लिखेंगे तो राइट विद स्मॉल लेटर्स. ठीक है, सो एम्पियर इज यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये एम्पियर ज्यादा फेमस है, बट बेसिकली इसमें कूलम पर सेकंड आपने यूज किया. ठीक है, दैट इज व्हाट यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ कूलम एंड सेकंड. वैसे भी लिख सकते हैं आप यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हैं. एम्पियर इज स्टैंडर्ड. ठीक है, एंड मोर फेमस. आई मीन दैट इज व्हाट यू शुड स्टिक टू. ठीक है, and one more important thing here is because current flows, right? I mean current is basically flow of charge, right? Because charge is moving from one direction to another direction. Maybe let's say example, charge आपका left से right जा रहा है, which means you are saying sir current left से right जा रहा है, right? So you might think that current is a vector quantity. ठीक है, but that is not the case. So I will write here current is not a vector quantity, it's a scalar quantity. And the simple explanation is it doesn't follow vector laws, which means triangle law of addition of vectors. वो ये follow नहीं करता है. ठीक है, and but let's not get into detail, and that is not the part we are going to focus. So the question is not whether it's a scalar or vector. We don't care. What matters is as of now for us it's a scalar quantity, है ना. All this को आगे आप पढ़ोगे फिजिक्स में, तो वहाँ पे टेंसर क्वांटिटी के नाम से अलग अलग तरह का कैटेगरी है, एंड ईच एंड एवरी कैटेगरी बिलोंग्स टू सम पार्ट विच वी स्टडी इन स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th लेवल एज स्केलर और वेक्टर. ठीक है, सो इट्स बिट लार्जर पिक्चर, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम वरीड ऑन. ठीक है, या द बेसिक आइडिया इज दैट ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो ये फॉलो नहीं करता है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. सो फॉलो करता है नहीं करता है, अगेन दैट इज नॉट माय कंसर्न. द ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट वेक्टर. ठीक है, सो विच मीन्स वेक्टर का कोई भी फॉर्मूला वगैरह आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट माइट गिव यू दैट फीलिंग, यू नो, कि डायरेक्शन है तो मे बी वेक्टर होगा, तो मे बी वेक्टर का फॉर्मूला यूज करते हैं. डोंट डू दैट. दैट इज ओनली रीजन, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ राइटिंग स्केलर क्वांटिटी. सो इसका से स्केलर क्वांटिटी यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग which we did in vectors. So we will not apply anything similar to vectors. Okay, whatever we are going to apply that we'll learn later on, but the point is never apply anything which we apply specifically for vectors. That's it. Okay, so इसको नोट करो फटाफट. We'll later on see कि इसको यूज कैसे करते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोगों को यूज कैसे करना है. और अगर एक अच्छा एक इसमें एक पॉइंट देखोगे ध्यान से, तो आप मतलब यहाँ पे क्या ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसका मीनिंग आप अलग अलग तरह से समझ सकते हैं ना. एक तो मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर चार्ज को डिफरेंशिएट करें. मैथमेटिकली अगर हमें देखना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसको डिफरेंशिएट अगर आप कर देते हो तो आपको करंट मिलेगा, राइट. सो अगर मैं चार्ज को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे करंट मिलेगा. एंड मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये काफी फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, सो दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूँ, एंड दैट इज आई कैन राइट डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, राइट, विच मीन्स इफ आई अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. ठीक है, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ तो इंटीग्रेशन डी क्यू विल गिव मी टोटल चार्ज फ्रॉम वॉट एवर ड्यूरेशन वी आर ऑब्जर्विंग, है ना. तो जो भी ड्यूरेशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो मिल जाएगा आपको इंटीग्रेट करने से, राइट. एंड दिस इज also very important. So in short, because of this differential relation, if expression of charge is given with respect to time, तो आप current find कर सकते हैं. and अगर आपके पास current का expression as a function of time given है तो you can also find charge. ठीक है, so these are like very very important things, क्योंकि ये जो बेसिक छोटे कॉन्सेप्ट है ये काफी सारे चैप्टर्स में आपको आगे दिखेंगे और बहुत ही प्राइमरी कॉन्सेप्ट है काइंड ऑफ ये, जहां भी हम लोग इसको यूज करेंगे. ठीक है, एनीवे जस्ट नोट इट फास्ट.
हो गया डन? Has everyone noted? Okay, so I'm assuming हर किसी ने नोट किया. So let's start solving problems. और काफी ज्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड चैप्टर है, ठीक है. So let's start with a very simple question. So question says we need to find the current through a cross section if 10 coulomb charge flows through it in 5 seconds. ठीक है. So फाइंड करो आंसर. बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा. 5 सेकंड्स में इसका आंसर आ सकता है. I mean करंट 5 सेकंड 10 कूलम चार्ज आपका 5 सेकंड से पास हुआ एंड एग्जैक्टली 5 सेकंड्स में आप इसको सॉल्व भी कर सकते है ना. 2 एम्पियर है. सारे बच्चों ने आंसर लिखा 2 एम्पियर. दैट इज गुड. So let me solve it for you. Okay, so we are going to say current and we'll write it as dq by dt. तो ये क्या एकदम फंडामेंटल आपका फॉर्मूला हो गया. बट इसमें दिक्कत क्या है, ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपका चार्ज वेरिएबल है ना, विच मीन्स हर मोमेंट, ठीक है, हर मोमेंट आपका चार्ज चेंज हो रहा है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करें dq by dt. अदरवाइज यू विल सिंपली राइट चार्ज डिवाइड बाय टाइम. ठीक है. सो ये जो करंट है ना, दिस इज व्हाई the reason I've given you this question is we need to understand dq over dt, which means हर स्मॉल मोमेंट है ना, एक बहुत छोटे मोमेंट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितना चार्ज पास कर रहा है, which means आप काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. इंस्टेंटेनियस करंट है ना, एकदम जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ठीक है, उसी तरह का आप इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. बट इस केस में क्या वैसा सीन नहीं है. लाइक दे हैव नॉट एक्सप्लेन इन फैक्ट. ठीक है. ऑल दे हैव सेड इज सी वी ऑब्जर्व फॉर 5 सेकंड एंड 10 कूलम चार्ज पास हो रहा है. सो इन दैट सिनेरियो विल नॉट यूज दिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, विल सिंपली राइट चार्ज डिवाइड बाय टाइम. सो चार्ज इज 10 कूलम, टाइम इज 5 सेकंड, therefore this will become 2 coulomb per second, or you can say 2 ampere. But what is this current? ना ये कौन सा करंट है? ठीक है. this will be called average current है ना. एंड ये रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा करंट एवरेज करंट है एंड कौन सा करंट इंस्टेंटेनियस है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको अलग अलग तरह के करंट्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल यू विल स्टडी RMS वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट है ना. यू विल स्टडी RMS values, which is like very different, right? So you'll study alternating current, right? Alternating current में again charge का current का nature fluctuates with respect to time in a very different way, weird way, and in kind of some beautiful way it actually varies, and that gives us some very interesting results. So keep this in mind, okay? So जब भी आपको एक time given है, time duration आपको given है, and आपको net charge given है कितना pass किया है, so will whatever we calculate that will be called average current. ठीक है. लेकिन अगर आपको एक फंक्शन दिया है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं and whatever you have calculated is like उस मोमेंट पे क्या करंट हो रहा है, that current will be called instantaneous current. ठीक है. फास्ट नोट करो उसको एंड चैट पे रिप्लाई करो फास्ट. ऑल डन हो गया सब लोगों का? ओके awesome. So let's change the question है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज. 1 minute. Oh sorry, so just 1 minute, 1 moment. Yeah, कल नोट. Done. Awesome. So थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं. ठीक है. एंड लेट्स सी
what is there in different case. ठीक है, so we need to find current. Again same question, find current through conductor, but this time they have not given you time duration, है ना? Please try to understand मैं क्या बोल रहा हूँ. Time duration नहीं दिया है, there is a catch. So they have not given you time duration. They have simply said we need value of current at t equals to 2 सेकंड. t टाइम जब 2 सेकंड हो रहा होगा, मतलब जैसे अपने स्टॉप वॉच ऑन किया, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा 2 सेकंड, जैसे ही 2 सेकंड पे पहुंचा उस मोमेंट पे आपको करंट का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, गिवन इफ चार्ज flowing through it varies with टाइम एस. तो यहाँ पे क्या एक चार्ज का फंक्शन दे दिया. ठीक है, सो आई एम राइटिंग कैपिटल क्यू, है, फर्क नहीं पड़ता है आप स्मॉल क्यू भी लिखो कैपिटल क्यू, जो समझ में अच्छा लगे वो लिख दो. ठीक है, ये फाइंड करना है आपको. ठीक है, फटाफट फाइंड करो, बताओ क्या रिजल्ट आएगा. प्लीज सॉल्व इट फास्ट. एक काम कर लेते हैं, लेट्स रिजॉइन एवरीवन, है ना, देन वी कैन सॉल्व इट.